Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss about the output based questions based on the chapter File Handling. And this video will gonna be very important for you because in this video, you will learn lot of new things and concepts. So I request you to watch the video till end to make your concepts clear. Before going through with the output based questions, let me first clear your concepts in very brief. Although these concepts will get clear when we will do the output based questions. To read the data from a file, we are having three functions: read, read line and read lines. Read function is used to read entire data from the file and it returns the data in the form of a string. Read line function, it will read line by line. जितनी आपकी फाइल में lines हैं, it will read all the lines but one after the other. And it also returns the data in the form of a string. Read lines function is used to read all the lines from a text file and it returns the data in the form of a list. I have covered all these concepts in detail also. I will provide you the link of that in my description also. You can watch that videos to understand the concept in a detail. Now to write the data in a file, we are having two functions, write and write lines. Write lines function is used to write the sequence in a file, means your list, your tuple and your dictionary. And write function is used to write the string. जो हमें string की form में data enter कराना हो, that we can do with the help of write function. Now one more thing beta, we can write the data, print the data through print function also, but on the console. Suppose here I am writing hello and here next print function में मैंने लिखा welcome. So what will be its output? It will print hello and welcome. On the same line or in the next line? Yes. It will print these two statements in the next line. Means in first line it will print hello and in second line it will print welcome. Let me just execute this. I am saving this file with name demo. Now see here. Okay? But in case of file handling, when I will use the write function, suppose here I am opening the file, f equals to open, and the name I am giving to my text file is abc.txt, and I have opened that file in write mode. Now what I am doing, f.write hello and f.write welcome. Now can you guess what will be the output of this? It will print hello and welcome, but in the same line or in a different line? In a same line. Let me just first we have to close the file also. Now let me just execute this. Now I will show you that abc.txt file. This is my file and see f.write hello and f.write welcome. That means कि जो मेरा write function है वो अपने आप से जब तक हम specify नहीं करेंगे वो next line में data को write नहीं करेगा. ये concept आपको इसलिए बताया because this will be used in our output based questions also. Now let's start the output based questions. First, this program, I will execute each and every code one by one to clear your concepts. ठीक है? अब first देखो बेटा, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया. The name of my file is output.txt in write mode. After that, उस फाइल में मैंने क्या लिखा, hello world और \n लगाया. \n means next line में. तो what it will write, hello world लिखेंगे और उसके बाद next line में मेरा कर्सर पहुंच जाएगा. उसके बाद मैंने लिखा how are you. After that I have closed the file. फिर मैंने उसी फाइल को ओपन करा बेटा रीड मोड में और उसके बाद मैंने क्या लिखा, फाइल डॉट रीड फंक्शन कॉल किया. दैट मीन्स इट विल रीड ऑल द डेटा फ्रॉम द फाइल. और मेरी फाइल में क्या डेटा है बेटा, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू.
Let me just execute this. Now see here. Hello world, how are you? ठीक है, अगर आप अपनी फाइल चेक करोगे output.txt तो उसमें भी आपका ये डेटा सेम होगा. Let me show you that also. Now see here. Hello world, अब हमने वहां पर \n लगाया था, इसीलिए मेरा जो है how are you कहां पर राइट हुआ है, नेक्स्ट लाइन में. आई एम शोइंग यू द आउटपुट, और जिसका आउटपुट होगा दैट आई एम शोइंग यू साइड बाय साइड, सो दैट कि अगर आपको यूं ना लगे कि इसमें कुछ कहीं पर जो भी डाउट हो आप उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन. In every question beta you will understand the new concept. Now see here, I have opened a file with new.txt in write mode. That means अगर इस नेम से ऑलरेडी फाइल है तो it will overwrite the content of the file. अब उसमें मैंने write फंक्शन में ये सारी चीज लिख दी बेटा. A poem by परमाहंस योगानंदा, better than heaven or Acacia, I love thee, O my India, and thy love I shall give to every brother nation that lives. ये सब मैंने अपनी फाइल में राइट करा दिया. उसके बाद मैंने अपनी फाइल को क्या करा बेटा, क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट आई हैव ओपन द सेम फाइल जिसमें मैंने डेटा को राइट किया है, उसी को मैंने क्या किया बेटा, ओपन किया. किस मोड में, रीड मोड में. और वो मैंने किसमें, फाइल हैंडल कौन सा हो गया बेटा, obj1. अब मैंने क्या किया, obj1 डॉट रीड फंक्शन कॉल किया 48. That means it will read the 48 characters from that file. और उसको मैंने क्या करा दिया, प्रिंट. और उसके बाद मैंने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज. Let me show you this new.txt फाइल also. अब जो भी मैंने ये लिखा है ये सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट होगा. रीजन, मैंने कहीं पर \n को यूज नहीं किया. Let me just execute this. ठीक है, अब ये क्या चीज प्रिंट हो रही है बेटा, 48 कैरेक्टर्स. जो मैंने यहाँ पर लिखा है 48, दैट मीन्स इट विल रीड 48 बाइट्स फ्रॉम द फाइल. यू कैन काउंट इट एज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, you can count this up to, वो 48 कैरेक्टर्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा. Let me show you the new.txt file also. Now see here, अब मैंने कहीं पर \n नहीं दिया है तो उसके लिए वो इसको एक ही लाइन कंसीडर करेगा. ठीक है. Now move on to the next question. Question number 3. This. Now see here बेटा, अब हमने क्या करा, new1.txt नेम से मेरे पास एक फाइल है, उसको मैंने ओपन करा बेटा रीड मोड में. तो पहले मैं आपको new1.txt फाइल दिखाऊं कौन सी है, तभी तो हम डेटा को रीड करेंगे. दिस इज माय new1.txt फाइल. वही सेम डेटा है बट अब मैंने उसमें नेक्स्ट लाइन में एंटर कर रखा है. जो मेरी new.txt फाइल थी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, ये वो वाली फाइल नहीं है. उसमें तो मैंने सारा का सारा एक ही लाइन में एंटर कराया, बट इसमें मेरा क्या है बेटा, अलग अलग लाइंस में मैंने अपना डेटा एंटर करा रखा है. अब क्वेश्चन देखो, हमने वो वाली फाइल ओपन करी बेटा रीड मोड में, obj1 डॉट रीड लाइन. दैट मीन्स रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, मेरा एक लाइन को रीड करेगा. तो जैसे मैंने obj1 डॉट रीड लाइन लिखा तो मेरी एक लाइन रीड हो गई और रीड लाइन फंक्शन मुझे एक्स्ट्रा \n रिटर्न करके देता है. उसके बाद मैंने दोबारा रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया तो इट विल रीड द सेकेंड लाइन. उसके बाद मैंने अगेन आई हैव रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया तो ये थर्ड लाइन रीड कर लेगा. अब ये थर्ड लाइन रीड करने के बाद मेरा कर्सर है बेटा पॉइंटर फोर्थ लाइन की बिगिनिंग पर. अब मैंने किया रीड फंक्शन कॉल किया और 15, दैट मीन्स फोर्थ लाइन के मैं 15 कैरेक्टर्स को रीड आउट करूंगी और उसको मैंने क्या कराया बेटा, प्रिंट कराया. तो ये मेरी फोर्थ लाइन है. फोर्थ लाइन क्यों, क्योंकि 3 बार मैं रीड लाइन फंक्शन को कॉल कर चुकी हूँ.
तो 1 by 1 इट विल रीड द 3 लाइन्स। अब ये 15 कैरेक्टर्स 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 कैरेक्टर्स को क्या करेगा, रीड करके उसको डिस्प्ले कराएगा। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। एज यू कैन सी, यू कैन इवन काउंट दिस ऑल्सो। दीज आर माई 50 कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट फाइल। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी हियर बेटा, लेट मी जस्ट इरेज दिस कमेंट। अब हमने क्या किया, p1.txt एक फाइल ओपन करी, किस मोड में, राइट मोड में, और मैंने क्या करा, ये सारा कंटेंट उसमें लिख दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, कहीं पर बैकस्लैश n नहीं है, और आपको इसका आउटपुट बताने की आउटपुट आपका क्या आएगा, मीन्स फाइल में डेटा क्या आएगा। मैंने कहीं पर प्रिंट फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो आपका जो डेटा राइट होगा कहाँ पर होगा, फाइल में। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर तो कोई आउटपुट नहीं शो होगा, यहाँ पर सिर्फ तभी आउटपुट शो होगा अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगी। अब मेरी p1.txt फाइल क्रिएट हो गई क्योंकि मैंने राइट मोड में ओपन किया था, तो अब ये सारा टेक्स्ट उसमें राइट हो गया। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। दिस इज माई p1.txt फाइल। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा एक ही लाइन है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर बैकस्लैश n यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट क्या आएगा, सारा का सारा ये डेटा फाइल में राइट हो जाएगा। अब यही सेम मैंने लिखा फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, p2.txt फाइल क्रिएट करी इन राइट मोड, वही सेम डेटा मैंने लिखा बेटा। अब इस टाइम मैंने क्या यूज कर दिया, बैकस्लैश n। दैट मीन्स जो भी मैं फाइल में लिखूंगी अब वो मेरा एज अ सिंगल लाइन नहीं राइट होगा। कितनी लाइंस, कितनी टाइम्स राइट फंक्शन, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स अब मेरी फाइल में टोटल 5 लाइंस है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस टू शो यू द आउटपुट। इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और फाइल का नेम क्या है बेटा, p2.txt। एज यू कैन सी दिस इज माई p2.txt जिसमें मैंने बैकस्लैश n को यूज किया है, जो मेरा क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में डेटा को राइट करेगा। बट अगर मैं p1.txt की बात करूं तो वहां पर मैंने बैकस्लैश n यूज नहीं किया, तो मेरा सारा का सारा डेटा उसी फॉर्म में आएगा। इवन आप जो सेकेंड लाइन है, यहाँ पर मेरी फर्स्ट लाइन एंड हो रही है, जो सेकेंड लाइन की बिगनिंग है उसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, इवन जो सेकेंड लाइन का एंडिंग है और थर्ड लाइन की बिगनिंग है वहां पर भी कोई भी स्पेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन के एंड में और सेकेंड लाइन की बिगनिंग में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स रीड द फिफ्थ क्वेश्चन। Considering the two files p1.txt and p2.txt created in the previous question, what output will be produced by the following code fragments? ये क्वेश्चन बेस्ड है बेटा, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है अभी, कि उसमें हमने जो फाइल्स क्रिएट की हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट क्या आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। obj1 इक्वल्स टू हमने p1.txt वाली फाइल को ओपन करा इन रीड मोड। ठीक है, अब p1.txt, लेट मी शो यू दैट फाइल। दिस इज माई p1.txt। रिमेंबर ना कि इसमें हमने राइट फंक्शन यूज किया था, कहीं पर बैकस्लैश n यूज नहीं किया था, तो दैट मीन्स वो आपका सारा सिंगल लाइन में। यहाँ पर आपको जो डबल लाइन में दिख रहा है वो डबल लाइन नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से वर्ड रैप हटा दूं तो दैट मीन्स ये आपका सारा का सारा एक ही लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द कोड फ्रेगमेंट। obj1 डॉट रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा बेटा, मेरी एक लाइन को रीड करेगा, और ये मेरी कितनी लाइन्स हैं, एक ही लाइन है। तो दैट मीन्स जैसे ही मैंने फर्स्ट रीड लाइन फंक्शन कॉल किया, इट विल रीड दिस लाइन, और इस लाइन को रीड करने के बाद मेरा पॉइंटर एंड में आ गया और एक बैकस्लैश n भी रिटर्न करता है। उसके बाद मैंने लिखा obj1 डॉट रीड फंक्शन कॉल किया 15।
दैट मीन्स इसके बाद मुझे 15 कैरेक्टर्स को रीड करना है और फिर मुझे उसको प्रिंट कराना है। अब जब मैंने रीड लाइन फंक्शन कॉल किया, उसने ये एक लाइन रीड कर ली, अब क्या इसके पास इसके बाद कोई डेटा रीड करने को है? नहीं। तो क्या वो कुछ प्रिंट करेगा? नहीं। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू द आउटपुट ऑफ दिस ब्लैंक। ये ब्लैंक भी वो बैकस्लैश एन जो मेरा रीड लाइन फंक्शन ने रिटर्न किया था, ये एक वो वाली लाइन है बेटा। ठीक है, तो इसका आपका जो आउटपुट कुछ भी शो नहीं होगा, कोई टेक्स्ट वो रीड आउट करके नहीं देगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने p2.txt फाइल को ओपन करा रीड मोड में। लेट मी शो यू दैट p2.txt ऑल्सो। दिस इज माई p2.txt फाइल। अब जब हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम पर रीड लाइन फंक्शन को हमने कॉल किया, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड लाइन फंक्शन कॉल किया, इट विल रीड दिस लाइन, इस लाइन को रीड कर लेगा। अब इस लाइन को रीड करने के बाद मेरा पॉइंटर कहां पर आएगा बेटा? सेकेंड लाइन की बिगनिंग पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने रीड फंक्शन कॉल किया, अब ये रीड फंक्शन क्या करेगा बेटा? 15। दैट मीन्स यहाँ से 15 जो कैरेक्टर्स होंगे ये वो रीड आउट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ तक वो HEA लास्ट का हमने रीड करा बेटा A, तो ये आपको A तक जो है डिस्प्ले करके देगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस नाउ। नाउ सी हियर बेटा। ठीक है, उसने मुझे A तक मीन्स 15 कैरेक्टर्स को रिटर्न करके मुझे डिस्प्ले करा दिया। और डिस्प्ले क्यों कराया? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट फंक्शन में लिखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Now in this question what we have to do, अब हमने p2.txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया। Let me just show you that file again. This is my p2.txt फाइल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा। सेकेंड, yes, this is the 6th question और दिस इज द p2.txt फाइल। अब हमने p2.txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया। अब मैंने क्या लिखा? प्रिंट fp1 जो मेरा फाइल पॉइंटर है रीड लाइन 20। दैट मीन्स कि ये मेरा जो रीड लाइन फंक्शन है, अगर मैं इसमें 20 लिख रही हूँ तो फर्स्ट लाइन के 20 कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा। ठीक है, अब 20 कैरेक्टर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ A तक बेटा मेरे 20 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको क्या करा है? प्रिंट करा है। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा बेटा? यहाँ से लेकर के इतना प्रिंट कर देगा A तक। ठीक है, अब रीड लाइन फंक्शन है तो दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में आएगा इसके बाद। अब उसके बाद मैंने क्या किया बेटा? fp1 डॉट रीड लाइन 30। अब रीड लाइन जो मेरा कर्सर है बेटा कहां पर है? परमहंस के बाद जो स्पेस है वहां पर। ठीक है, तो ये स्पेस को भी रीड करेगा। और 30 मीन्स कि इस लाइन में 30 कैरेक्टर्स, या ये मेरी लाइन एंड हो रही है, जो चीज पहले होगी वो चीज करेगा। ठीक है, मेरी लाइन पहले ही एंड हो जाएगी 30 कैरेक्टर्स से, तो this time it will read only this space और प्लस योगानंदा। ठीक है, उसके अब देखो फर्स्ट टाइम तो मेरा जो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन है उससे मेरा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा? fp1 डॉट रीड लाइन 30 कैरेक्टर्स रीड किए योगानंदा वाले। ये स्पेस कौन सा है बेटा? ये वाला जो y से पहले स्पेस है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन के बाद रीड लाइन फंक्शन को दोबारा से कॉल किया विथ 25 कैरेक्टर्स। अब मेरा कर्सर कहां पर है बेटा? सेकेंड लाइन की बिगनिंग पर। सेकेंड लाइन की बिगनिंग पर अभी कितने कैरेक्टर्स को रीड करेगा बेटा? 25। अब रीड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 कहाँ पर बेटा हो रहा है मेरा? सी पर। तो ये बेटर देन हेवन और ARC यहाँ तक ये उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा बैकस्लैश n आ रहा है इसके बीच में, ये कहाँ से आ रहा है? नाउ सी हियर बेटा, जो मेरी ये p2.txt फाइल है, जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड लाइन फंक्शन लगाया, ठीक है, तो क्या मेरी लाइन कंप्लीट रिटर्न हुई, कंप्लीट रीड हुई थी? नहीं, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स रीड आउट करे थे। ठीक है, जो मेरा रीड लाइन फंक्शन है वो क्या करता है, जब मैं कंप्लीट लाइन को रीड कर लूं, उसके बाद वो मुझे बैकस्लैश n, जो एक्स्ट्रा बैकस्लैश n है, वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट वी विल एग्जीक्यूट दिस लाइंस वन बाय वन, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बेटा। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस फाइल। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन कॉल किया 20 बाइट्स, मींस वो ये वाले 20 कैरेक्टर्स को रीड करके डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा बैकस्लैश नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर जो है लाइन आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, लेट मी, अगर मैं सपोज इस 20 को 60 कर दूं, 60 कैरेक्टर्स तक वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लाइन रिटर्न करके देगा। ठीक है, क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि वो कंप्लीट लाइन को रीड आउट कर चुका है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। अब वापस से इसको 20 कर देते हैं। अब मैंने सेकेंड टाइम जब रीड लाइन 30 करा, अब जब मैं रीड लाइन 30 कर रही हूँ, अब मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा था, वो चीज बाद में प्रिंट होगी अब, क्योंकि मैं एक बार उसको प्रिंट करा चुकी हूँ। अब योगानंदा परमहंसा के बाद स्पेस है, ये वो वाला स्पेस है, उसके बाद 30 कैरेक्टर्स कंप्लीट नहीं है, बट वो मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। तो जब मैं प्रिंट S1 लिखूंगी तो ये मुझे एक्स्ट्रा बैकस्लैश n रिटर्न करके देगा। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अब मैंने क्या करा, fp1 डॉट रीड लाइन 25, दैट मीन्स जो मेरी नेक्स्ट लाइन है उसके ये 25 कैरेक्टर्स को रीड करके रिटर्न करेगा। अब दोबारा देखो, इसने एक्स्ट्रा बैकस्लैश n नहीं रिटर्न किए। क्यों नहीं रिटर्न किया? क्योंकि इसने लाइन ही कंप्लीट नहीं रीड की। अगर मैं इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज कर दूं, अब ये कंप्लीट लाइन रीड आउट होगी, प्लस मुझे एक्स्ट्रा बैकस्लैश n भी ये रिटर्न करके देगा। दिस कंसेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ दिस all about the output based questions of file handling. I request you to even execute these programs so that आपके जो concepts हैं वो और clear हो जाएंगे जितना आप इसको explore करोगे। If you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.